Okay. The first content of BRD is the document revision guide. In document revision, we are having the three section: date, version number, and the document changes. So in the date, we will write the date. Version number is version number 1.0, and the document changes is the initial draft. So example, Nancy is my business analyst, and Nancy is having the three client called Subhas, Venkat, and Sasan. So when Nancy is preparing and presenting the document to clients like Venkat, Subhas, and Sasank, the name will be the initial draft. हमेशा जो आपका पहला वर्जन होगा DVRD का, that will be the initial draft. Then after suggestion from Venkat, after suggestion from Venkat, Nancy did some changes, and Nancy again represented this to Venkat as a second version of BRD. So changes done after suggestion from Venkat. उन्होंने दिखाया changes को. उसके बाद after again there were some suggestions came from the Sasank side and from the Subhas side. Then final version of the BRD is prepared and presented by Nancy on 2011-2025, and that is the final version of the BRD. And the version of the BRD is 3.0. तो पहला वर्जन था 1.0, दूसरा वर्जन था 2.0, and third version is the 3.0. Okay. Now this is our section called document revision. Nancy, Subhas, Venkat, Sasank. Have you understood the document revision, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Venkat? Yes, sir. Yes. हम सुन रहा है तो Yes बोलना है पर. okay. You need to say yes also. Okay. Okay, Venkat. Second section is the approval guide. Approval section में कौन होते हैं? Mostly the person who are responsible for approving your project. ऐसे पर्सन जिनके पास आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव करने की अथॉरिटी रहती है, दे विल बिकम एज अ पार्ट ऑफ योर अप्रूवल सेक्शन. इन अप्रूवल सेक्शन यू विल हैव मोस्टली पीपल फ्रॉम द क्लाइंट साइड. ठीक है. एग्जाम्पल, आपके टीम में प्रोजेक्ट स्पॉन्सर इज वेंकट. ओके. तो इसमें कौन कौन से कॉलम्स आते हैं? रोल, नेम, टाइटल, सिग्नेचर एंड द डेट. रोल इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द रोल ऑफ द अप्रूवल. जो आपका अप्रूवल का रोल क्या है प्रोजेक्ट में. एग्जाम्पल, वेंकट इज द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर. His title in his own company, senior consultant, and he will provide the sign. He has provided the sign off on the particular day. अगर आप साइन ऑफ देखोगे तो थर्ड वर्जन ऑफ BRD पे है, जो कि मान के चलो 20 तारीख को नैन्सी ने भेजा और 25 तारीख तक 25 तारीख को साइन ऑफ दे दिया वेंकट ने. तो वेंकट हैज प्रोवाइडेड द साइन ऑफ फ्रॉम द BRD on 25th of November 2025. Okay. Now you are having another stakeholder in your team, that is Subhas. Subhas is the vice president. His sign off is also received on the same day. The सारे क्लाइंट लगभग साइन ऑफ एक ही दिन या यहाँ पर आपको आगे पीछे साइन ऑफ दे रहा है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. जैसे 25 तारीख को साइन ऑफ दिया वेंकट ने, देन आफ्टर 2 days साइन ऑफ हैज बीन रिसीव्ड बाय Subhas as well. Shashank is also the project manager. Shashank sign off is also required. You can say he is the project head. Okay. He is also vice president, and he has also provided us a sign off after 1 day of Subhas. Subhas का sign off आने के बाद Shashank has also provided the sign off. So in the approval section, guys, ये तीनों किसके पर्सन है? अगर ICICI मोबाइल बैंक की एप्लीकेशन की बात चल रही है, हम कौन से मोबाइल बैंक की एप्लीकेशन को पढ़ रहे हैं? एनीबडी गाइस? एनीबडी? एक्सिस वर्ड. तो एक्सिस का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में वेंकट, सुभाष एंड शशांक विल बी फ्रॉम द एक्सिस टीम. अप्रूवल के टीम में हमेशा आपकी क्लाइंट आते हैं, तो वेंकट, सुभाष एंड शशांक विल बी फ्रॉम द एक्सिस बैंक टीम. इनके अप्रूवल आने के बाद ही आपका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा. वंस यू विल रिसीव द साइन ऑफ, देन ओनली यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट. Understood? Nancy, Subhas, Venkat, Shashank, approval section.
Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Now the अ- next. अश्विन एक डाउट, अगर ये तीनों में अगर कोई भी चेंज रिक्वेस्ट मांग सकता है? हाँ, they can ask the change request before sign off. ओके. After sign off, nobody can request for the change request because that will be out of scope. What is the meaning of sign off? If we are mutually coming on contract for this project, we are going to develop this set of requirement. Example, 16 requirement we are going to develop, and project head, business owner, and project sponsor are agreeing on the same. If any change is requesting by the client, that is out of scope. Then we need to go for the change management. Nancy, this will be revision for you guys. Yes, sir. Nancy, you are working in waterfall and one change is coming to you. As a business analyst, what will be your responsibility and how you are going to overcome and what will be your role as a business analyst to handle the change? Sir, in the waterfall method, as we have already taken the sign off in BRD and FRD, we will not take any additional changes, but uh, we will try to convince our client that we will not take additional changes, and as we have discussed and approvals and the format already signed off. So we'll do the changes later in other updates. मैंने एक क्वेश्चन पहले क्लास में बोल बताया है क्या आपको Mm, या नहीं बताया है? The question is, a new change is coming to you as a business analyst. What will be your step that you are going to follow? कोई चेंज आता है तो आपको क्या करना है? मैंने आपको समझाया या नहीं समझाया? समझाया है. समझाया. एक्चुअली उस टाइम हम भी क्वेश्चन पूछा था, नेक्स्ट डे क्लास में आपने एक्सप्लेन किया था पूरा waterfall एक्सप्लेन किया model था में. क्या? क्या Yes, करना sir. होता है? नैन्सी? Yes, sir. Yes, sir. You have explained it. ओके. नैन्सी? Yes, sir. क्या है आंसर भैया? तो वाटरफॉल में तो हम जैसे प्रोजेक्ट का अप्रूवल आ गया है, साइन ऑफ मिल गया, उसके बाद कोई चेंजेस एडिशनली हम लोग लेते नहीं है, क्योंकि अ, क्योंकि जो टाइमलाइन होता है वो भी मिस नहीं, एंड मैच होता है. अरे करेक्ट. नैन्सी, आप एकदम सही आंसर दे रहे हो. What saying you are giving the wrong answer. Your answer is right, but I have given answer of this question in a different way. Yes, Okay. sir. वो याद है क्या? Not exactly, but as per my understanding, I gave the answer. शशांक, Yes, sir. have you gone through the recording of this session? Yes, sir. Yes, sir. Can you please tell me a Shall I? new changes coming? Please continue with the answers. Suppose the client brings a new change or any requirement in the project after the sign off. As a BA analyst, we should ask him. The first step is to ask him what is the change, and second thing is to categorize the change, like whether it's easy, medium, or complexity of that task, uh, and uh, and we should check for the scope of the work uh, given by him, and what is the impact of the changes uh, for the running project, or the requirement, existing requirement, the and the impact of the total amount of days taken to uh, complete the task, and the impact of the overall project.
Okay. This whole analysis you did. And commercials or budget, and budget impact on the commercials and budget. Okay, so you did all the analysis. Now, after that, what will you do, Sasan? Uh, You did all the initial analysis. Okay, you yes, understand what is the change, what is the scope of work, what is the impact of this change in the existing set of project, what will the commercial, what will the resources allocate and all. So you did this analysis, and then what will you do, Sasan? uh, as a business analyst, we should say no to the client. It's not possible. Like, Okay, then we will go to the client and explain it the same to the client. Then these are the okay, set of analysis I did. And as a part of analysis, what I feel is this requirement we should not take as a part of this change only. So whatever we are going through, let's continue and deliver the same. The change you are going to tell me that we can take as a different change or the different phase two. So let's have the two phases. This is phase one. In the phase one, we are going to deliver this set of requirement. And the phase two, we will deliver the different develop set of a different set of this requirement, right? requirement. If Yes, clients sir. say yes, that is fine. If clients say no, I want No. in this only, then you will say, okay, no problem. So let me discuss with the project manager. Then you will discuss this with the project manager, and then you, in this way, you are going to handle the change, correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So if I combine the answer of Nancy and Sasank, or vice versa, Sasank and Nancy, then my answer will be complete. First part Sasank ने बताया, second part Nancy ने बताया, third part मैंने आप लोग को बता दिया. Understood, Sasank? Yes, sir. Yes, sir. Nancy जी क्या हुआ? Yes, sir. You are the master of the class, dear. आपको तो ऐसे आंसर याद रहते थे. Yes, sir. क्या हुआ? सर थोड़ा स्किप हो गया और नहीं, माइंड बहुत से. अच्छे से बताया था नैन्सी. यस सर. हाथ कैसा है अभी आपका? बेटर. बट पैर नहीं चला पाते होगे ना अभी? नहीं सर, अब मैं धीरे धीरे करने लगी हूँ, नहीं, उससे मत भी करो काम. धीरे धीरे, मत करो धीरे धीरे. उसको आराम ही करने दो हैंड को अपने. ठीक है, 1 महीने बाद भी हम ये चीज कर सकते हैं. इट्स ओके. ठीक है नैन्सी, जो कुछ पुराने क्लास के जो रिकॉर्डिंग्स है, नोट्स आप नहीं बना सकते, आई कैन अंडरस्टैंड, इंस्टीट्यूशन किसी के साथ भी आ सकती है. और अगर आपके पास स्क्रीन शॉट्स वगैरह है ना, बट ये यस सर. स्क्रीन शॉट मिलेगा ही नहीं आपको ये आंसर को. दिक्कत ये है, ये यस जो सर. आंसर मैंने आपको दिया है, इट इज 100 रिकॉर्डिंग ओनली. करेक्ट? यस ओके. सर. चलो शशांक. Yes, Shashank, sir. Yes, sir. what you will do, the question is, as a business analyst, a new change is coming to you. What will be Okay. your responsibility in this case? You will write the answer of this question. Okay, if you are comfortable, you can write in Word file or in the notepad and you will share in the group. Okay, sir. Comfortable, Shashank? Okay, okay, sir. No problem. Complete answer, whatever I Okay. told you today, or you can refer the recording as well. That will Okay, help sir. No. Nancy and all to get the answer of this question. Okay, sir. Okay. Okay, Nancy, fine. यस सर. अगर आपको थैंक लगता यू. है नैन्सी कि कुछ और भी क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि यू वांट नोट्स, आप नहीं बना पा रहे हो, आप प्लीज बताओ. पीपल विल राइट फॉर यू. एंड बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर शशांक लिखेंगे या वेंकट लिखेंगे या सुभाष लिखेंगे, उनके लिए सबसे पहले अच्छा है क्योंकि उनको याद हो यस जाएगा. सर. और आपके लिए भी अच्छा है कि आपको रेफरेंस मिल जाएगा. यस सर. ठीक है. ठीक है शशांक, कल आप ग्रुप में डालिएगा, फिर आपको हम लोग अच्छे से थैंक यू बोलेंगे. Okay, sir. ठीक है, आपको Okay. चॉकलेट भी देंगे वर्चुअली वाली. ठीक. Now, the next content of the BRD is the introduction guide. Okay? Introduction में you are having the summary section. In the summary section, you are going to define your project summary. Project summary should be so much of descriptive in such a way, if anybody reads your project summary, he should get the understanding of what you want or what the project is all about. कोई भी अगर आपका रिक्वायरमेंट्स बढ़ता है, कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव बढ़ता है, तो उसको सारे प्रोजेक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो जानी चाहिए.
ओवरऑल ऊपर ऊपर से उसको पता चल जाना चाहिए ये प्रोजेक्ट क्या है। नाउ लेट मी टेल यू दिस विथ वन ऑफ द एग्जांपल। मैं आपको एक प्रोजेक्ट बताता हूँ भाई। ये प्रोजेक्ट है 1 मिनट अकाउंट ओपनिंग BRD। ओके, दिस प्रोजेक्ट इज 1 मिनट अकाउंट ओपनिंग BRD। So guys, let me tell you one more thing, अगर बारा भूल जाऊंगा। From 1st to 10 we will not have the class mostly। 1 से 10 क्लास में, because I'm traveling somewhere, so if you want to plan something you can plan, or otherwise इस month हम लोग will not try to miss any of the classes। अगर मैं travel, जैसे tomorrow I'm having the travel again from Mumbai to Pune, so we don't have that class tomorrow in night, तो वो क्लास मिस होगी। बाकी विल ट्राई नॉट टू, बिकॉज वी डोंट हैव एनी हॉलीडेज एज वेल, विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल द क्लासेस, बट फ्रॉम 1 December to 10 December आई विल नॉट अवेलेबल। ओके, यू विल यूटिलाइज दिस टाइम फॉर योर स्टडी। देखेंगे कितना कोर्स हो पाता है, और मोस्टली 1 वीक का ही बचना चाहिए। ओके, तो वी विल नॉट डू एनीथिंग इन हरी। हम जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं करेंगे, बट अगर विल ट्राई टू कंप्लीट एवरीथिंग बाय नवंबर, बट अगर नहीं भी होता है वी विल टेक 1 वीक इन द दिसंबर। बट कुछ भी हम जल्दीबाजी में नहीं पढ़ेंगे पहले। ओके, शशांक, नैन्सी, सुभाष, Okay, sir. वेंकट। Yes, sir. Yes. Yes. You can also plan something if you want to plan it। चलिए, नाउ आई एम टेलिंग यू द 1 मिनट अकाउंट ओपनिंग का BRD। सो दिस इज योर सेक्शन गाइज। 1 मिनट अकाउंट ओपनिंग BRD का आपका जो नेम है वो है 1 मिनट अकाउंट ओपनिंग BRD कस्टमर ऑनबोर्डिंग ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन फॉर्म। इन्होंने 1 लाइन में अपने प्रोजेक्ट को डिफाइन किया। ये प्रोजेक्ट लिखा गया है मई 2016 में। इसका वर्जन है 0.2। इसको प्रिपेयर किया है पेरिस ने। नाउ अप्रूवल के सेक्शन में इन्होंने ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, तो आई एम नॉट गो देयर। डायरेक्टली आई एम गोइंग टू कम इनटू द प्रोजेक्ट समरी के इंट्रोडक्शन में। चलिए, आई वांट सुभाष टू, नहीं सुभाष, अच्छा ठीक है, सुभाष विल रीड एंड नैन्सी विल एक्सप्लेन दिस प्रोजेक्ट। तो Subhas, your responsibility is to read project summary and the objective, and then Nancy will explain about this. Am I clear? Am I audible, sir, clearly? You are audible, 100% audible. Thank you, sir. So, the third point is introduction, where we write the project summary, and its objectives are develop an online application form for account opening purposes. The online application form shall be available on the bank's website and mobile app login page as a link that will lead the applicants to the account opening form screens. The online application shall be available for the use of all prospect customers located within and outside Jordan. The online application, once filled and submitted by the customer, all information filled and selected by the customer should identically reflected on Siebel system. The remaining steps for account completion should be conducted by the branch selected by the customer within 1 minute. Note: account opening completion can be done abroad through selected corresponding banks to be covered by procedures. Okay. Subhas, please call me tomorrow day after 12, huh? Sure, sir. Sure. कुछ डिस्कस करना है आपसे। Sure. Nancy जी, please explain। Yes, sir. सर लेमन लैंग्वेज में ही एक्सप्लेन कर दूं? नहीं, फ्रेंच में चलेगी। नहीं सर, मतलब ऐसा जी जी हिंदी जी, इंग्लिश का कोई नहीं नहीं, मैसेज आप हुआ लेमन था। लैंग्वेज में एक्सप्लेन कीजिए कि ये प्रोजेक्ट क्या है, व्हाट दिस प्रोजेक्ट इज एक्चुअली ऑल अबाउट। जी आप सभी ने कभी भी ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग किया होगा किसी ना किसी बैंक का। आप एज अ कस्टमर आपने कभी किया हो, और नहीं किया होगा तो आप आज कोई सी भी बैंक का वेबसाइट पर जाकर के सर्च करिएगा, चलिए सर्च आईसीआईसीआई करते या हैं। एक्सिस बैंक पे। जी जी, आप बताइए किस बैंक में जाएं। एक्सिस का ही कर लीजिए, हम एक्सिस पे ही ज्यादातर बात कर रहे हैं तो। चलिए, एक्सिस ज्यादा तक से बात अकाउंट करते हैं। ओपनिंग।
तो मैं कर ऑनलाइन। मेरे से गलती ये हो गई ना कि मैं भूल गया था मैं किसी बैंकर से बात कर रहा हूँ कोई बात नहीं, कोई चलिए। बात नहीं सर। एक्सिस, क्या लिखूं जी? एक्सिस, एक्सिस बैंक अकाउंट ओपनिंग, सेविंग अकाउंट ओपनिंग या कुछ भी लिख एक्सिस सकते हैं आप। बैंक सेविंग अकाउंट ओपनिंग लिख करके मैं इसको एंटर करता हूँ। नो, हो गया, ठीक है। ऐसे लिखता हूँ, एक्सिस बैंक अकाउंट। ये क्लास आप नहीं, हाँ ठीक है। हाँ नंसर जी, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे सर। मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा। हाँ जी। अभी यहाँ पर आपको ये लेफ्ट हैंड साइड में ओपन नाउ का ऑप्शन आ रहा है। एक मिनट, हाँ यो, एक मिनट, ये कुछ कहाँ जाओ बताइए ना, ये चलता जा रहा है स्लाइड। नीचे जाइए सर। ये ओपन सेविंग अकाउंट का ऑप्शन आ रहा था ना, ऊपर की तरफ ही आ रहा था सर। एक मिनट, हाँ स्लाइड हो रहा है क्या ये? हाँ, ये बोल रहा ये है क्या? आया। हाँ जी, हाँ जी, क्या इस करूँ पे तो क्लिक इसका? करिए। क्लिक क्लिक करिए कर सर रहा इस पे। हूँ जी। यहाँ पर आप अपनी बेसिक डिटेल्स डालेंगे, जैसे पैन कार्ड और अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर। ये आपसे आपका ओटीपी लेगा, आधार लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, एंड देन यूल प्रोसीड। वहाँ पर आपकी जो लोकेशन होगी वो फैच करेगा आपसे, आपकी बेसिक डिटेल्स जैसे कि एड्रेस, आपके पेरेंट्स की डिटेल्स, आपको नॉमिनी किसको रखना है, और इसके साथ साथ आपको किस ब्रांच में अपना ये अकाउंट ओपन करना है वो ऑप्शन चूज करने के लिए आते हैं। जैसे ही आप आगे प्रोसीड करते हैं, आपको अकाउंट में इनिशियल फंडिंग करने का प्रोसेस बोलता है कि आप जो बेसिक अकाउंट बैलेंस है उसके लिए आप फंडिंग कर दीजिए, एंड देन योर अकाउंट विल बी ओपन। दैट्स इट। इट्स जस्ट अ 4 स्टेप प्रोसेस। ये और अच्छी बात कही आपने। आपने एक्सप्लेन किया एक्सिस बैंक का, बट इससे मेरे प्रोजेक्ट का क्या रिलेशन है? क्या सर? इससे मैंने आपको प्रोजेक्ट समरी बताने को बोले थे, आप मुझे एक्सिस बैंक अकाउंट ओपनिंग बता दिया आपने। हाँ सर, बट वो मैं आपको एक्सप्लेन ही कर रही थी इन द वे कि आप ऐसे भी समझ जाए, बट मैं आपको वो समरी भी समझा देती हूँ आप। मैं Sir, जाता तो हूँ। sir, it's called a great marketing, sir. नहीं 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 नहीं, वो आंसर मेरा सही है, मैं बस नहीं सोच सर, रहा था। आई एम नॉट विद एक्सेस। No, 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 just kidding. But it's a great तो marketing activity. Sorry. हाँ जी। तो द थिंग इज कि जो इसका ऑब्जेक्टिव है, इसमें अकाउंट ओपनिंग के पर्पस के लिए हमको एप्लीकेशन फॉर्म डेवलप करना है। ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ पर मिलेगा? या तो आपको बैंक की वेबसाइट पे मिल जाएगा, और इसके साथ साथ जो उसी पर्टिकुलर बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन है, जैसे ये एतिहाद बैंक का है, तो एतिहाद बैंक का जो मोबाइल एप्लीकेशन होगा उसका लॉगिन पेज पर भी एक लिंक आपको अवेलेबल रहेगी, जिसको क्लिक करते ही आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर अकाउंट ओपनिंग स्क्रीन या उसका फॉर्म आपके सामने रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जैसे हमने अभी एक्सिस बैंक वाला किया था। क्लिक करते ही आपको वो फॉर्म ओपन हो गया था। अब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये सभी प्रोस्पेक्ट्स के लिए अवेलेबल होना चाहिए, चाहे वो किसी भी लोकेशन पे हो सकता है कि कुछ रूरल लोकेशंस होती हैं या ऐसी जगह जहाँ पे ब्रांचेस नहीं होती है, तो ऐसी जगह पर भी आप बैठकर अकाउंट ओपनिंग कर पाए। तो विद इन और आउटसाइड द लोकेशन, या जॉर्डन एक सिटी का नाम है जो वहाँ का होगा, बट ये लोकेशन आपका कहीं का भी हो सकता है। आप या तो इंदौर में बैठ के करो, या हैदराबाद में करो, या कहीं पर भी आप कर सकते हो। द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो आप एक बार फिल कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं, तो कस्टमर की जितनी इंफॉर्मेशन है वो सब आ जाती है, रिफ्लेक्ट करती है, प्लस वो अपना ब्रांच भी उसमें सिलेक्ट करेगा कि आप कौन सी ब्रांच में उसका अकाउंट होगा, और आगे की जो स्टेप्स होगी वो कस्टमर का ब्रांच में कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड यही आपको ऑब्जेक्टिव इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए दिया गया है। और अब्रॉड जो कस्टमर्स हैं, लाइक आउट ऑफ द कंट्री, वो भी इस प्रोसीजर को फॉलो करके अकाउंट ओपनिंग कर पाए। ओके शशांक, हैव यू अंडरस्टूड द प्रोजेक्ट समरी जो समझाया आपको?
Nancy, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I understood. Subhas, have you understood? Yes, sir. Venkat, have you understood in detail what Nancy explained regarding this project? तो समझ गया। हम लोग ये साइबर सिस्टम क्या है? ये तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है ना वैसे? Cyber system is a banking का system, internal system. मतलब once customer will fill the form and वो जब सबमिट करेगा ना तो उसकी डिटेल जो है वो साइबर सिस्टम पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, बैंक के इंटरनल सिस्टम पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मैं एक्चुअली साइबर बोल के एक कंपनी था ना वो ओके, राइट। आई वांट टू टेल वन थिंग है, वैसे आपने ग्रेजुएशन में एमबीए भी किया है? नहीं सर, मैंने आप बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड एमबीए टाइप, या आप डिप्लोमा कह सकते हैं उसको, वैसे किया एक्सेस है। यंग बैंकर प्रोग्राम क्या? हाँ सर, यंग बैंकर नहीं, पीबीआरएम प्रोग्राम। पीबीआरएम प्रोग्राम प्राइवेट, किया है आपने हाँ। फ्रॉम हाँ, बेंगलोर? नो सर, निमराना, एनआईटी यूनिवर्सिटी। I have explaining this project from I don't know from like approximately बहुत दिन से मैं कर रहा हूँ, सालों से कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट का एक्सप्लेन। सेम प्रोजेक्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे आज तक किसी ने ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया है इनसे इस प्रोजेक्ट को। इसमें ऐसा नहीं है कि मेरे बैच में बैंकर्स नहीं थे, ओके, बहुत सारे बैंकर्स को भी ये बनाया है मैंने मतलब भगवान ने बनाया, आई जस्ट हेल्प दैट, बट ऐसा एक्सप्लेन आज तक किसी ने नहीं किया। सो वेरी गुड नैन्सी। यस सर, थैंक यू। आपके लिए क्लैपिंग भी कम है बट आई वांट टू डू क्लैप, अभी तो वही कर सकता हूँ। लेट्स क्लैप फॉर नैन्सी गाइस। Very good, Nancy. In the similar way, Nancy, just focus. Okay. Whereas if you see in our group, Nancy, Venkat, Subhas, and like Nancy, Venkat, Sasank, and Subhas, service also we are having useful for recording. They are very good guys. Actually, they are very good. हम लोग सब अच्छे हैं, बस ये चीज कंटिन्यू रखो आप लोग। व्हाट आई वांट ना कि आफ्टर द क्लास ऑल्सो डू नॉट लीव मी। लोग बोलते हैं ना मुझे छोड़ के मत जाना, तो वैसे मुझे छोड़ो बस मत। कई बार क्या होता है क्लास में लोग करते हैं मोटिवेशन एंड ऑल, आफ्टर दैट यू कंटिन्यू योर ओन वर्क। यू जस्ट बिलीव मी, दिस बीए जॉब यू आर गोइंग टू गेट इजली। बस जो मैं बोलता होता हूँ वो करते जाओ, पेशेंस थोड़ा सा रखो बिकॉज जॉब मार्केट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, बट यू गाइस आर वेरी गुड एक्चुअली। अगर आप लोग होते पुणे में, आई वुड रियली लाइक टू मीट यू गाइस, बट आप लोग पुणे में, मुंबई में कहीं पे आप लोग हो नहीं, तो एक्चुअली मैं मिल भी नहीं सकता हूँ आप लोग, बट यू आर वेरी गुड गाइस, एक्चुअली यू आर वेरी गुड। आई विल वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि हाँ, आप लोग का बहुत जल्दी सिलेक्शन हो। चलिए, कोई मोटिवेशन नहीं है ये, इट इज एक्चुअल ट्रुथ। जो नैन्सी का समरी सुन करके आया, इन सिमिलर टू शशांक, अगर आप देखोगे शशांक इज लिसनिंग टू द रिकॉर्डिंग, द वे ही इज आंसरिंग द क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली ग्रेट। वेंकट इज अ वेरी गुड हु इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। शशांक इतना एफर्ट करके हार्ड वर्क करके आने के बाद भी फीवर एंड ऑल यू अटेंड इन द क्लास, तो वेरी गुड, वेरी गुड। So let me continue. So in the project summary, first of all, the project summary should be in such a way जिसको पढ़ने से ही आपको आधे से ज्यादा चीजें की पता चल जाए। इफ यू रीड हेयर, अगर मैं आपको टेम्पलेट में दिखाता हूँ कि प्रोजेक्ट समरी में कैसा होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव, दिस कुड बी डिस्क्राइब द ओवरऑल गोल इन डेवलपिंग द प्रोडक्ट। आपका प्रोजेक्ट समरी का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि वो पूरे प्रोडक्ट के गोल को डिफाइन कर दे कि आप ये क्यों बना रहे हो। What is the goal of developing of this product? High level description of what the product will do. आपका प्रोडक्ट क्या करेगा and how it is aligned to the business objective and the requirement. Agree if you are having some, because whenever we are going to make any of the project, it is having some kind of objective, right? Without objective हम लोग प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं. So it should have all the details. In the simple way, if I want to say your project summary, your objective should be describe your overall project. कि आपका प्रोजेक्ट क्या है। नैन्सी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गाइस, यहाँ पे वी वांट टू डेवलप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब मैं पहले बैचेस में कुछ लोगों से क्वेश्चन पूछता था तो सब बोलते हैं सर एप्लीकेशन बना रहे हैं, सर वेबसाइट बना रहे हैं एंड ऑल, बट एज आई टोल्ड यू, नैन्सी पहली लड़की है, इन सॉरी स्टूडेंट है मेरे ग्रुप की जिसने बहुत इतने अच्छे से आंसर किया। सो यस, वी वांट टू क्रिएट वन लिंक। ओके, एक लिंक आपको बनाना है और यू वांट टू क्रिएट द फॉर्म। एक्चुअली यू वांट टू क्रिएट द फॉर्म, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म बनाना है। दिस इज योर प्रोजेक्ट टू डेवलप द ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, एंड दिस फॉर्म वो एज अ लिंक रहेगा, एंड दिस लिंक विल बी अवेलेबल इन द बैंकिंग वेबसाइट एंड द मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, जो हेल्प करेगा यूजर को
टू फिल द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, जैसा नैन्सी ने दिखाया भी आपको। एग्जाम्पल मैं लोगों को देता हूँ गाइस कि आप जाइए एक्सिस, मुझे पता था ये एक्सिस बैंक का, यही एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। नैन्सी पहले क्लास अटेंड की है क्या इसकी, कुछ देखा है कहीं सुना है? नहीं सर, तो बट कैसे ये कैसे एक्सपीरियंस हो गया है, क्योंकि हम लोगों का मोस्टली काम ही यही होता है कस्टमर के पीछे पड़ के कि आप जहाँ हो वहां बैठ के अकाउंट ओपन कर दो, बट कर दो। तो ओके ये ही है हमारे पास कुछ चीजें जिसके थ्रू हम हमारा काम कर पाते हैं सर। ओके, वेरी गुड। तो yes, in the similar way I was explained to my old batches also कि आपको एक्सिस बैंक एप्लीकेशन में इज अ वेरी गुड बैंक, जहाँ पे आपको ऑनलाइन ही आपका अकाउंट ओपनिंग हो जाता है, राइट? तो इन द सिमिलर वे द ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म शैल बी अवेलेबल इन द बैंकिंग वेबसाइट, जैसा नहीं मैंने ने दिखाया, और ये आपके मोबाइल एप्लीकेशन से में भी अवेलेबल होगा एज अ लिंक। देन द ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग शैल बी अवेलेबल फॉर द यूज ऑफ ऑल prospective कस्टमर लोकेटेड एंड विद इन एंड आउटसाइड जॉर्डन। अगर आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया, और आउटसाइड इंडिया आप कहीं भी हो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। द ऑनलाइन एप्लीकेशन वंस फिल्ड, एक बार जब एप्लीकेशन आप भर देते हो और सबमिट कर देते हो, तो ऑल द डिटेल विच इज फिल्ड बाय द कस्टमर विल बी रिफ्लेक्टेड टू द सिविल सिस्टम। जैसे वेंकट ने बोला था व्हाट इज सिविल सिस्टम, तो सर सिविल सिस्टम आपका इंटरनल सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। एंड द रिमेनिंग स्टेप ऑफ द अकाउंट ओपनिंग कंप्लीशन शुड बी कंडक्टेड बाय द ब्रांच सेलेक्टेड बाय द कस्टमर विद इन 1 मिनट। जब कस्टमर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरेगा, एग्जाम्पल आई एम इन मुंबई सो आई विल सेलेक्ट ब्रांच कॉल दादर, अगर मैं दादर के पास हूँ दादर का ब्रांच सेलेक्ट करूंगा, आई कैन once I fill the form online in my home, I will go to the other branch and I will complete my remaining process of account opening in 1 minute. Okay, so project summary should be describe your overall project goal, intention, objective, and it should be very descriptive way. कोई भी इसको पढ़े तो आपको पता चल जाए कि आपको बनाना क्या है। Okay, then second, okay, so project summary, guys, have you understood? Nancy, Sasank, Subhas, Venkat. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Now the second is the background. तो बैकग्राउंड में क्या आएगा? बैकग्राउंड विल प्रोवाइड द ब्रीफ हिस्ट्री। ओके, अब यहाँ पे गाइस एक चीज ध्यान देना, आप लोग कुछ चीजें अपने आप को रिपीट करेंगे, जैसे बैकग्राउंड, बिजनेस ड्राइवर, ये एक दूसरे को लगभग रिपीट ही करते हैं, और यहाँ पे आपको वही देखने को भी मिलेगा। सबसे पहले बैकग्राउंड समझो आप क्या होता है। तो बैकग्राउंड विल प्रोवाइड अ ब्रीफ हिस्ट्री हाउ द प्रोजेक्ट केम इनटू प्रपोज्ड एन इनिशिएटिव, including the business issues, problem identified, and expected benefit of implementing the project, developing the product. जो आपका ये प्रोजेक्ट है वो डिफाइन करेगा, इट प्रोवाइड द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ हाउ द प्रोजेक्ट केम इनटू प्रपोजल इनिशिएटिव। आपका ये प्रोजेक्ट क्यों आया ये आपको बताएगा, क्या जरूरत पड़ी थी इस वाले प्रोजेक्ट की, क्या बैकग्राउंड था, एंड व्हाट इज द बिजनेस इश्यूज एंड द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड, कि हमें ये प्रोजेक्ट बनाना पड़ रहा है। जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट को बनाते हैं एंड वी आर डूइंग द ऑटोमेशन या डिजिटाइजेशन, हम किसी भी प्रोजेक्ट का करते हैं, किसी भी वर्क का करते हैं, उसका हमेशा कोई ना कोई इश्यूज होते हैं हमारे पास। एग्जाम्पल, अगर अभी आपको अकाउंट ओपनिंग करने जाना हो बैंक में, आप समझो आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे आप ऑनलाइन कर सकते हो, व्हाट इज योर वे, प्रॉब्लम क्या होगी, आप नहीं तरी ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन है कि आपको ब्रांच ही जाना पड़ेगा, यू नीड टू टेक लीव फ्रॉम योर ऑफिस, करेक्ट, देन यू विल गो टू द ब्रांच। एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू द गवर्नमेंट बैंक, तो आपको अलग अलग काउंटर्स पे जाना होगा, यू नीड टू टेक द फॉर्म, दे विल give you the form, you will fill the form, you will do the mistakes in your form. Then again, you will submit to the wrong person. They will ask you submit to the desk number 5. You go to desk number 5, desk number 5 will tell you this desk is closed, go to desk number 6. Then you submit your form in desk number 6. After 1 or 2 days, the person will call you, you filled your detail incorrectly. Please come in branch and correct it. Then you will again go to branch, you will fill the details correctly, and then you will submit. After submission, they will take their own sweet time to open the account. Once they open the account, your debit card will not come, your credit card will not come. Your debit card, credit card is coming, your checkbook will not come. Right? This is the, if you see the person is working somewhere and he's having the value of time. अगर एक पर्सन है जो कि 5 दिन काम करता है, उसकी सैलरी 5 लाख रुपए है, तो आप उसकी घंटे भर की सैलरी निकाल सकते हैं, करेक्ट? तो वो उसके लिए पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका टाइम है, उसका वर्क है। अगर वो एक दिन की छुट्टी लेगा तो उसको 15,000 का नुकसान होगा, करेक्ट?
So what person looking for is the faster way to open the account. तो यहाँ पे फिर अभी private banks came into picture and they are going to provide multiple facilities. So these are the problem and issue आया तभी आपका ये project initiated हुआ. And sometime in the business in the background section we are also describing the expected benefit. तो कि benefit इसका क्या हो रहा है. Okay. Now Venkat, can you please read the background of 1 minute account opening BRD? Branch assisted online account opening is no longer a luxury, but a differentiation when a consumer are shopping for new bank or credit union. It will transform new account opening, allowing more time for discovering the needs of the new customer, determining optimal functional solution, and building better onboarding experience. To determine the optimal financial solutions and building a better onboarding experience, correct? So first of all, a branch assisted online account opening is no longer a luxury, but it's a differentiator when a customer are shopping for the new bank or the credit union. अभी अगर आपको किसी भी नए बैंक में अकाउंट ओपन करने जाना है तो आपके लिए जो 1 मिनट अकाउंट ओपनिंग है या डिफरेंट फीचर्स होते हैं आपके अकाउंट के, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं. बिकॉज अगर आप डिफरेंशिएटर नहीं होगे, अगर आपका प्रोसेस अच्छा नहीं होगा, then people will go with the different credit union or the bank. Okay, it will transform the new account opening, allowing more time for the customer to discovering the need of the customer. Okay, determining the financial solution and building the better onboarding experience. आपका जितना अच्छा onboarding experience रहता है उतना अच्छा आपका next जो sales होता है वो हो जाता है. Okay, so it will transform the new account opening and it will also allow you to discover the need of the customer कि need क्या है customer की. And you can also provide the optimal solution and better onboarding experience. आपका जितना अच्छा onboarding experience होगा उतने अच्छे आपके client को आप सर्विस दे पाओगे and all. You tell me, Nancy, you are from the bank. अगर आप किसी कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस करने के लिए जाते हो, your PBRM, right? So you want to open the account of priority account open करना है आपको. इस priority account Yes, guys sir. is the अकाउंट जिसके हाई वैल्यू चेक्स होते हैं, लॉट्स ऑफ फीचर्स रहते हैं. आप उस कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लेके आए और आपने अकाउंट ओपनिंग उसका 10 दिन में किया ड्यू टू एनी रीजन. आप फॉर्म लेकर के आए, अगले दिन छुट्टी पे चले गए, या फिर आपका फॉर्म लेकर के आए भूल गए, देन आफ्टर फ्यू डेज हॉलीडेज लग गए एंड ऑल, आपका अकाउंट ओपनिंग 10 दिन में हुआ. क्लाइंट चाह रहा था कि आपका अकाउंट जल्दी हो जाए, 3-4 दिन में, पर 10 दिन में हुआ, पर अकाउंट ओपन हो गया. वन एक्सपीरियंस. सेकेंड एक्सपीरियंस, आपका एक क्लाइंट है जो बोलता है मुझे अकाउंट जल्दी ओपन करके देना है, 3 दिन का टाइम है, आपने उसको 2 दिन में अकाउंट ओपन करके दे दिया. दोनों Yes, कस्टमर sir. में से आप बताओ कौन सा कस्टमर होगा जिसके साथ आपका सेल्स जल्दी क्लोज होगा. Second customer, sir. क्यों? सर एक तो अकाउंट ओपनिंग जल्दी हो जाता है. सी, अगर कस्टमर आपको ये कह रहा है कि हमको अकाउंट ओपनिंग रिक्वायर्ड है जल्दी, तो दैट मीन्स उसको कहीं ना कहीं अकाउंट या आपकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, उसको कहीं देना है या फंड्स ट्रांसफर करने या कुछ भी. एट दैट टाइम अगर हम उसका काम जल्दी उसको करके दे देंगे तो कस्टमर विल गेट हैप्पी एंड वो आपकी बात सुनेगा, अगली बार टाइम देगा कि हाँ आपने मेरा काम जल्दी करके दिया. बट द फर्स्ट कस्टमर जिसका हम लोगों ने मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज कर दिया है, वो आयरेट हो जाएगा. वो फिर या तो वो मोस्टली चिढ़ करके बात करेगा या बात ही नहीं करेगा, ये कह देगा कि मुझे अकाउंट ही नहीं खोलना है. तो वो आगे आपको कभी टाइम नहीं देगा बात करने के लिए या बिजनेस डील करने के लिए, क्योंकि उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस ही खराब हो गया. तो फर्स्ट एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कस्टमर इन Yes. टर्म्स ऑफ बैंकिंग. Yeah, first experience is very important for the customer care. I was also in the same group. So if you open the account of the customer very fast, आपका एक्सपीरियंस अच्छा अगर हो जाता है क्लाइंट के पास, तो आप उससे दोबारा मिलने जा सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो. भले अपना प्रोडक्ट पिच मत करो, बट यू कैन गो टू द क्लाइंट एंड इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस. अगर आप उनका अकाउंट ओपन कर देते हो नथिंग से, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है क्लाइंट के साथ और क्लाइंट के रिलेशनशिप बहुत अच्छी बन जाती है.
देन यू कैन आस्क द क्लाइंट, धीरे धीरे करके उनसे रिलेशन एक बार जब अच्छा होता है, बोलते फर्स्ट एक्सपीरियंस इज द लास्ट एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है। फर्स्ट एक्सपीरियंस शुड बी द वेरी गुड एक्सपीरियंस टू मेक योर रिलेशनशिप वेरी गुड। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए फर्स्ट वाला, क्योंकि उससे आप आपके ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस अगर अच्छा है तो वहां पे योर product will be sell in a more convenient way. So this was the background कि अगर आपका अकाउंट ओपनिंग जल्दी होता है then it will give you the chance, it will give you the opportunity to speak with the customer. So बैकग्राउंड में क्या क्या आएगा, आपके चैलेंजेस आएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, इश्यूज आएंगे, क्या क्या इश्यूज थे, एंड सम बेनिफिट यू वांट, what you want to explain, that will come as a part of your background. Understood? Nancy, Venkat, Subhas, Yes, sir. Sasank, ठीक है? Yes, sir. Now, the second is the business driver. In the business driver, we are going to list what make the development of this project is very important. Mostly, what is the benefits actually? इसके क्या क्या हो सकते हैं? ये आपका business driver में डिफाइन करता है what is driving you to make this project. आपको ये प्रोजेक्ट क्यों बनाना है, इसका आंसर आपका बिजनेस ड्राइवर देता है. The business driver, first, customer are looking to faster way to open the account and expedites the opportunity to open their account abroad. एक तो आपका कस्टमर, तो सॉरी मैंने दो को मिक्स किया. कस्टमर आर लुकिंग फॉर अ फास्टर वे टू ओपन देयर अकाउंट एंड मे कंसीडर कॉम्पिटिटर इफ नीड्स आर नॉट मेट. कस्टमर आज की डेट में बहुत जल्दी तरीका ढूंढता है, जल्दी से उसको अकाउंट ओपन करना है. अगर आप नहीं करोगे तो आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा. ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग प्रोवाइड ऑफशोर कस्टमर एंड एक्सपेक्टेट्स टू अपॉर्चुनिटी टू ओपन देयर अकाउंट अब्रॉड. अगर कोई आपका कस्टमर अब्रॉड में बैठा हुआ है, वो भी आपका गवर्नमेंट अकाउंट ओपनिंग से अकाउंट ओपन कर सकता है. कस्टमर कैन कंप्लीट देयर एप्लीकेशन एनीवेयर एनी टाइम. आपका कस्टमर कहीं से भी किसी भी टाइम पे अकाउंट ओपनिंग कर सकता है. ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग रिड्यूसेस द टाइम नीडेड बाय द ब्रांच टू कंप्लीट द अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस and therefore it provide more time for the customer service staff to focus on their sales target. अगर आप अकाउंट ओपनिंग का टाइम ही कम लगाओगे तो ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है एंड टाइम देता है फॉर यू टू फोकस ऑन योर सेल्स टारगेट एज वेल. सो दीज आर द बेनिफिट, these are the important factor that are required to complete your project. तो जो भी आपका प्रोजेक्ट को इम्पोर्टेंस है वो आप डाल देते हो अपने बिजनेस ड्राइवर में. Why this product is important for you, why this project is important for you, you are going to put as a part of your business driver. तो बिजनेस ड्राइवर क्या डालते हैं कि आपका प्रोजेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है. नैन्सी, सुभाष, वेंकट, शशांक, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. वेंकट, सुभाष, Yes, yes, sir. सुभाष, सुभाष, अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है. Next, tomorrow we don't have the class. Okay, we are having class on Thursday, and then Friday we'll have the class. So today I'll tell you, but Thursday and Friday we are going to have class. Tomorrow I'm traveling again, so we don't have the class. Just complete your recording and utilize your time for the project and also. I think I have provided project to Venkat, Sasank, and Nancy, correct? Today, Yes, sir. right? Yes, sir. We have received. Yeah. And Subhas, you call me tomorrow. So Yes, sir. I will discuss on the project part. मैंने आपको कल इसलिए नहीं बोला क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे लोगों को कॉल करने के लिए बोला हुआ था एंड आई गॉट मैनी कॉल. तो टुमारो इज योर डे डियर. आप कल मुझे कॉल करो एंड विल डिस्कस ऑन टू थिंग. और याद रख, दो चीजों में बात करनी थी, प्रोजेक्ट है और एक और चीज आपसे बात करनी है. ठीक है, Yes, sir. चलिए. Thank you so much all for joining the today's session. Have a Thank you, great night ahead. Good night. Bye bye. Thank you all. Good Good night. night.